वो चलते रहे। सवाल आसान न थे, पर वो पलटकर पूछते रहे। ना ऊंचा स्वर था, ना हथियार थे उनके हाथ में। बस एक कुर्सी थी जिसमें बैठकर पूरा देश जगाते रहे। I, Mansha Lunia, I, Mukti Jain, will be MOC for this session. Mansha, you know what? I always wanted to be a journalist. Like, it must be so much fun, right? To question people, investigate, and the whole life would be filled with suspense and thrill, isn't it? मैंने तो ऑडिट भी इसीलिए लिया था कि क्लाइंट को क्वेश्चन करूंगी, बड़े बड़ी कंपनियों उसके फ्रॉड ढूंढूंगी, पर शायद मेरी किस्मत में तो सिर्फ एक्सेल शीट ही लिखी है। ओह रियली? मुझे लगा तूने ऑडिट इसीलिए लिया ताकि क्लाइंट के पैसों से ताज और हयात जैसे होटल में जाकर इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स कर सके। हाँ, वो तो इम्प्लाइड ही है। गाइस, आप लोग भी ऐसा ही करते हो क्या? But jokes apart, journalism is not everyone's cup of tea. It is responsible job. You should be wise enough to equate what to ask and how to ask a right question. I truly agree. Somewhere between truth and TRPs, between debate and dignity, stands a reporter with a mic, a courtroom, and fearless courage. In fact, I must admit that there were two reasons I started watching news. One was this election and the other was my all-time favorite, Aapki Adalat, where politicians, actors and business tycoons face one of the most fearless questions ever asked on Indian television. Right, Mukti? Yes, Mansha. It was same from my side. I was hooked. That was not just a news. That was drama, dignity, and it was filled with dialogues which gave literal goosebumps. You remember that iconic line? Of course, I remember. और लाइन से ही हम सर का स्वागत करेंगे। सच बोलना चाहेंगे या वक्त का इंतजार करेंगे? Damn true. He's not just a journalist. He's a storyteller, a truth seeker, and a role model for all of us. Teaching us how to stay calm under pressure. Stay grounded in facts and speak with clarity and conviction. And guess what? Today that chair is not in Delhi, but here, among us all. That name is none other than Shri Rajat Sharma ji. Rajat Sharma ji, a prominent figure in the world of Indian media and journalism. He is best known for hosting the immensely popular show, Aapki Adalat, which has captured the hearts of not only our nation, but also audiences worldwide for the past 3 decades. Rajat Sharma ji's illustrious career has seen him interact with renowned personalities from both India and around the globe. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life, a tradition that continues to captivate audiences to this day. Nearly 2 decades ago, Rajat Sharma ji embarked on a new venture, launching India TV, which has now risen to become one of the leading Hindi news channels in the country. Every night at 9 p.m., millions tune in to watch his live news show, Aaj Ki Baat, where the pungent commentary takes center stage. But Rajat Sharma ji is more than just a television star. He is also a respected motivational speaker, often invited to share his insights in esteemed institutions worldwide. His influence extends beyond the screen, as he is recognized as one of the most influential media icons across the globe. In the realm of social media, Rajat Sharma ji reigns supreme.
holding the top position among TV news personalities on Twitter with an astounding 11.5 million followers. Born into humble beginnings and educated in ordinary schools, Rajat Sharma ji's merit got him to Sri Ram College of Commerce. Here, he formed bonds with individuals who went on to become world-class leaders in their respective fields. Rajat Sharma ji's involvement in student politics led to a period of imprisonment during the emergency. Undeterred, he pursued the education, earning an MCom from SRCC and venturing into the world of journalism. Remarkably, at the young age of 28, he assumed the role of editor for Onlooker magazine, followed by editorships at the Sunday Observer and the Daily. His exceptional reporting during that era is still celebrated in contemporary media. Aapki Adalat was already a nationwide sensation when Rajat Sharma ji took the helm in 1993. Over the years, it has garnered even more fame and name, with luminaries like President Shri Pranab Mukherjee and Prime Minister Shri Narendra Modi ji gracing its stage. Superstars like Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan appeared together for the first time on national television. The impact of Aapki Adalat is undeniable. Icons like Swami Ramdev and Shah Rukh Khan openly acknowledge how the show played a pivotal role in their rise to stardom. Former President of India, Shri Pranab Mukherjee, who honored Rajat Sharma ji with Padma Bhushan, urged him not to change his role, saying, "Please remain the public prosecutor of the people of India." This is the remarkable journey of Rajat Sharma ji, a name synonymous with excellence in the world of media and journalism. We CA students spend years learning how to balance the accounts. But this man, this gentleman, has spent decades balancing truth and diplomacy. So please put your hands together For the one and only, Chairman and Editor-in-Chief of India TV, आपकी अदालत के रचयिता और जनता के वकील, Shri Rajat Sharma ji. Please give a huge round of applause, guys. फाइनली वो घड़ी आ गई है. लास्ट अटेम्प्ट. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज. आ चुके हैं सर अब. With full energy, guys. Give a huge round of applause. सच का रास्ता कठिन था, मगर वो चलते रहे. सवाल आसान न थे, पर वो पलटकर पूछते रहे. ना ऊंचा स्वर था, ना हथियार थे उनके हाथ में. बस एक कुर्सी थी, जिसमें बैठकर पूरा देश जगाते रहे. Now let us behold a brief visual segment featuring Shri Rajat Sharma ji, sir.
कामों की दुनिया के देवता रहम, हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। सामने कौन है देखिए, जो सबको ग्रिल करते हैं। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो लोग कहते हैं शशि थरूर ने तो बहुत पहले खोल ली थी। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं। ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की ये हमारी भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते हैं। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। ये है, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन, दिस इज द लगन, मेहनत, ये होता है। सो वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। एक कमरे में घर में जिंदगी जिसने गुजारी, पढ़ाई के लिए जिसके पास घर में बिजली नहीं थी। ये देश की विशेषता देखिए कि अपने परिश्रम से एक इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। रजत उसका उदाहरण है। This program has manifested the strength of our democracy. And please, do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. This name, this face, Shri Rajat Sharma ji, a prominent figure in the world of Indian media and journalism. He is best known for hosting the immensely popular show Aapki Adalat, which has captured the hearts of not only our nation, but also audiences worldwide for the past 3 decades. Rajat Sharma ji's illustrious career has seen him interact with renowned personalities from India and around the globe. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life, a tradition that continues to captivate audience to this day. So please put your hands together For the one and only Chairman and Editor-in-Chief of India TV, आपकी अदालत के रचयिता और जनता के वकील श्री रजत शर्मा जी। On behalf of entire CA student fraternity and Board of Studies, WIRC and Vikasa, we request you to grace the stage. Sir, we have always seen you question the country's most powerful personalities. But here we are privileged
to welcome you among the country's most hardworking professionals. Now I invite CCM CA Purushottam Khandelwal sir to present a memento to Shri Rajat Sharma ji sir. Now I request Central Council member CA Purushottam Khandelwal sir for welcome address. Good evening, respected chief guest, editor-in-chief and chairman of India TV, Rajat Sharma ji, who graced the occasion on the student conference organized by BOS Studies, Ahmedabad. My council colleague, Sanjeev Sanghi ji, who is the vice chairman of Board of Studies. My council colleague, P. Rajendra Kumar, he is the chairman of Indirect Tax Committee of ICI, chairman of the Ahmedabad branch, secretary of the Ahmedabad branch, Rakesh Bhai Lahoti, student leader, Shika madam, and dear future chartered accountants. First of all, I congratulate all of you that you are part BA happens to be heard to Rajat Sharma ji. Sir, I am a fan of you. I never miss the आज की बात रजत शर्मा के साथ मैं और मेरा परिवार पूरा देखता है. Sir, institute has been set up under the Act of Parliament way back in 1949. That is before adoption of the Constitution of India. Currently, we are 4,85,000 members. Out of 4,85,000 members, every third is a woman chartered accountants. 1,60,000 members are in practice. Sir, currently we are having a 5 regional council and 172 branch across the country, 88 overseas chapter. This is the history of ICI. Sir, institute has run by 32 elected council members across the country, 8 government nominee appointed by Ministry of Corporate Affairs. That is the board. Sir, we are a regulator just like SEBI, RBI. We are regulating the accounting and auditing profession in India. This is the conference organized by Board of Studies for the student and totally management by the student only to how to learn, how to organize the event. I will not take much of time. Once again, I welcome you. We will heard Rajat Sharma ji. You have every day heard me. Thank you so much. May I request Sanjeev Sanghi sir to introduce Rajat Sharma sir. I request. I think C. the time is Sanjeev, very sir. short and we want to hear more from him. I'll just take a very small little few liners for him. आज की बात रजत शर्मा के साथ. Big round of applause for him. He is a prominent figure in the world of Indian media and journalism. He is best known for hosting the immensely popular show Aapki Adalat, which he captured the hearts of not only our nation but also audience worldwide for the past 3 decades. Sir, we are really honored to have you with us. And let me tell you, the entire institute, which is spread across the world, is really grateful for your presence and for your motivational words. They all are looking forward. All the students who are sitting over here, sir, are intermediate and final students, and they are going to be the future of our country. They are going to be the future of the profession, and they are going to make India the accountant for the entire world. Thank you so much, sir. Thank you, sir.
Now I request CA Neerav Agarwal sir, Chairman of Ahmedabad branch of WIRC, to address him. So we would like to acknowledge the presence of our Honorable Past President of ICAI, Sri Aniket Talati, sir. Sir, welcome, sir. It is indeed a pleasure and privilege to stand before you today to welcome our very own Janta ke Vakil, Aapki Adalat ke Racheta Public Prosecutor, as given by our Honorable Past President of India, Pranab Mukherjee, sir, one and only Sri Rajat Sharma ji. I request members to please welcome with a big round of applause. Sir, इस अहमदाबाद ब्रांच की कॉन्फ्रेंस में जिसका थीम है प्रगति, आपके आने से सर स्टूडेंट में भी जरूर प्रगति हुई है, वृद्धि हुई है सर अटेंड रजिस्ट्रेशन में. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड कमिंग हियर टू शेयर योर रिच एक्सपीरियंस विद द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अहमदाबाद ब्रांच. आई एम श्योर सर विथ योर knowledgeable words and your rich experience, members will surely be motivated and boosted with high morale. With sir in the house, I'll not take much of the time. I'll request straight away MOC to take the charge and hand it over to the sir forward. Thank you. Thank you so much, sir. अब जिस पल का हमें इंतजार था, वो फाइनली आ चुका है. Now I request sir to share your words of wisdom with us. Give a huge round of applause for Rajat Sharma sir. सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं. इस बारिश के मौसम में भी आप लोग यहां पहुंचे और मुझे इतना प्यार दिया. असल में चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरा बड़ा पुराना नाता है. मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं और SRCC के ज़्यादातर स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बने. आज दुनिया के जिस भी कोने में जाता हूं, मुझे कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर मिल जाता है. और आज आपसे मुलाकात हुई है. आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंट बन जाएंगे तो दुनिया के किसी कोने में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी. मुझसे कहा गया कि कुछ ऐसी बातें कहूं जो मोटिवेशनल हों. अब मोटिवेशन तो मुझे आपसे लेना है. आज जो जिंदगी दिखाई देती है, ये जो टीवी पर आप देखते हैं, जो क्लिप्स आपने अभी देखे, असल में जिंदगी इतनी सेक्सी नहीं होती. और बचपन में जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सीखा, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ, वो ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में एक संकरी गली में तीसरी मंजिल पर एक 10 बाई 10 का कमरा था, जिसमें हम 7 भाई, एक बहन, एक माँ और पिताजी 10 लोग रहते थे. उसमें इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर सो पाएं. तो जैसे कपड़े के दुकान में थान रखने के लिए एक तरह से एक के ऊपर एक
तख्ते लगा दिए जाते हैं, ऐसे लगाकर उस पर सोते थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी जो हमारे बाबूजी थे, उनको अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास रहने को छत ना हो, तो उससे कहते थे हमारे घर आ जाओ, एडजस्ट कर लेंगे। हमारे घर में हमारे पास खाने को नहीं था, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। उस जमाने में अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर के दूध के डिब्बे आते थे, लाइन में लग के वो दूध के डिब्बे ले आते थे। कई कई दिन वो पाउडर का दूध पी के काम चलता था। लेकिन कभी कभी बाबूजी के साथ में जब जाता था सड़क पे पैदल, तो मैं देखता था कि उनकी जेब में एक माचिस की डिब्बी होती थी जिसमें चीनी के दाने होते थे, और वो खुद भूखे पेट होते थे, लेकिन कहते थे देखो चींटी के बिल देखो, कहीं चींटी भूखी न रह जाए। हमारे घर में पानी नहीं था। हम गली के नुक्कड़ पे एक सरकारी नल था, वहाँ जाकर नहाते थे, और एक बाल्टी पानी माँ के लिए और एक बाल्टी बहन के लिए लेकर आते थे। और उस कमरे में वो एक फटी साड़ी के पीछे किसी तरह से नहाती थी। बिजली नहीं थी, तो मैं पास के पड़ोस के रेलवे स्टेशन पर रात में पड़ता था। रेलवे स्टेशन पर तो रात भर बिजली होती थी। लेकिन इस सब भूख में, तकलीफ में हमारे बाबूजी हमें इंस्पायर करते थे। वो हमें कहते थे कि घबराना नहीं चाहिए। तो मैं कहता था बाबूजी घबराएं क्यों नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। तो कहते थे कि अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, अच्छा घर होता, तो कोई भी खुश रह लेता। चुनौती यह है कि गरीबी में, अभाव में, तकलीफ में खुश रह के दिखाओ। और वो मैंने सीखा। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अंत में, जीवन में जाकर कई वर्षों बाद जब हम देखते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि घर में बिजली नहीं थी, तो न रेडियो था, टीवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। हमारे घर के पड़ोस में एक टीवी था जिसके घर में, तो उनके घर में हम रात को टीवी देखने जाया करते थे। उस समय सिर्फ एक चैनल होता था, दूरदर्शन, और एक जो फिल्म आती है वो आधी फिल्म शनिवार को आती थी और बची हुई फिल्म संडे को दिखाई जाती थी। तो शनिवार को आधी फिल्म देख के जब मैं आया और संडे को जब मैं गया उनके घर पे, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर इंतज़ार किया। मैं जब वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा क्यों रोते हो? तो मैंने कहा कि वो शहीद भगत सिंह की आधी फिल्म देखी थी और आज उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, नहीं आने दिया। 8 साल की उम्र थी। बाबूजी ने कहा कि किसी दूसरे के घर पे किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। और बरसों बाद ये सपना पूरा हुआ। आपकी अदालत को आज 32 साल हो गए। लोगों ने इतना प्यार दिया। और जितना संघर्ष किया था, जितना दुख झेला था, उस सब का आप लोगों ने मुझे सूद समेत लौटा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि
आज चूंकि आपके सामने हूँ, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे शक होंगे, बहुत सारी उत्सुकताएं होंगी, क्यूरियोसिटी होंगी। आज आपके पास पूरा मौका है। मेरा जीवन खुली किताब है। शुरुआत की कुछ घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये विश्वास हो कि जो हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष है, इसकी मिट्टी में कुछ ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी को, अभाव में रहने वाले व्यक्ति को अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को सफलता में बदल दें। ये मैंने महसूस किया है। और गुजरात के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, एक आदमी जो चाय बेचता था वो आज देश का प्रधानमंत्री बना। तो अपार संभावनाएं हैं। आप लोग जिस फील्ड में हैं उसमें तो बहुत संभावनाएं हैं। और मैं जो हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको इसलिए बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, जैसे किसी भी स्टूडेंट के बारे में हम ये देखते हैं कि उनके जो टीचर होते हैं वो शायद उतने बड़े नहीं बन पाते, लेकिन स्टूडेंट जब बड़ा बनता है तो टीचर को बहुत खुशी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे खुद कितना कमाएं, लेकिन दूसरों को करोड़पति बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। और जब आपकी मदद से लोग पैसा कमाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो आप उनसे ईर्ष्या नहीं करते, आपको इस पर गर्व होता है। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो मेरी ये दुआ रहेगी कि आप लोग और करोड़पति बनाएं और अरबपति बनाएं, आप इस देश को बड़ा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, और जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तब तक तो ये चैलेंजेस और बड़े हो चुके होंगे, ये चैलेंजेस ग्लोबल हो चुके होंगे। जो भी सवाल आपके मन में है, मेरे ख्याल से शुरुआत करते हैं। आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा, मेरी तो आदत है सवाल पूछने की। गुड इवनिंग सर। सर, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप पर भी एक पार्टी के द्वारा इंजाम आप हैं कहाँ, पहले ही बताइए मुझे। अच्छा, हाँ। जी पूछिए। एज ए न्यूज़ चैनल सर, आज आप एंकर इंडिया टीवी चलाते हैं, एडिटर इन चीफ। सर, पब्लिक इंजाम लगाती है कि एक पार्टी के लिए बोलते हैं, लाइक बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, तो एक पेड न्यूज़ चैनल जैसे इंजाम लगते हैं आप पर, वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी इंजाम लगता। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, इंडिया टीवी का सवाल है, हम अगर चैनल चलाते हैं तो सिर्फ देश की जनता के लिए चलाते हैं। और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस बात की बिल्कुल परवाह मत करिए लोग क्या कहते हैं। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करिए, देश की वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम कीजिए। इस बात की बिल्कुल परवाह मत करिए लोग क्या कहते हैं। थैंक यू सर। वो गाना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो सर, विवेक माली मेरा नाम है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप एज अ एंकर, टीवी न्यूज़ एंकर काम करते हैं, तो कभी आपको ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ी है जिससे आपको लगता है कि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से थ्रेट्स है? क्योंकि एज अ न्यूज़ रिपोर्टर आपको सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर इससे मेरे को थ्रेट्स हो सकते हैं? देखिए, इस प्रोफेशन में ऐसा होता है, जब आप न्यूज़ देते हैं तो किसी के खिलाफ भी न्यूज़ आती होगी, कोई आपकी अदालत में आएगा, किसी से कड़वे सवाल भी पड़ते हैं, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। लेकिन मैंने जीवन में एक ही सिद्धांत बनाया, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं, जो पूछना है बेबाकी से पूछना है, बिना डर के पूछना है, बिना परवाह के पूछना है। कई बार लोगों ने धमकियां दी हैं, कई बार लोगों ने थ्रेट दिए हैं, लेकिन मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की।
और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इस देश के करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े हैं। हेलो सर, टू योर लेफ्ट सर, आपके लेफ्ट साइड, दिस साइड। हेलो सर, आई एम ग्रीशा मुरजानी। सर मेरा आपसे सवाल है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स मूवमेंट्स होते हैं जिसके पहले हम लोग नर्वस हो जाते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक दुनिया के सामने हम कैसे डील करेंगे। अगर कुछ ऐसा मोमेंट आ गया, किसी ने हमसे कोई ऐसा सवाल कर लिया जिसके पास कोई आंसर नहीं है, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में कौन से इंटरव्यू में या कौन से मोमेंट पे आई थी और आपने उसको कैसे टैकल किया, प्लीज़ हमें बताइए। असल में आपकी अदालत में मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूं जो अच्छी तरह से बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो तो और मज़ा ही ऐसे लोगों को बुलाने में आता है। अब उन लोगों को क्या बुलाना जो बोल नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे में आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। जब कुछ लोग ऐसे लोग आए जिनसे लोगों को सवाल पूछने में डर लगता था, जो कभी किसी का जवाब नहीं देते थे, जैसे सलमान खान। अब आप देखेंगे तो सलमान कभी इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, वो बड़े फिजिटी रहते हैं, सामान इधर रखते हैं, किसी इंटरव्यूअर की आंख में भी नहीं देखते, कभी जवाब दे देते, कभी जवाब नहीं देते। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उनसे हमारी कोई दोस्ती भी नहीं थी, बल्कि थोड़ी बहुत लड़ाई थी, झगड़ा ही था, क्योंकि वो जो कुछ करते थे वो इंडिया टीवी पर दिखाते थे, वो नाराज रहते थे। हमने एक इंडिया टीवी पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें कास्टिंग काउच के, ये 20 साल पहले की बात है जब इंडिया टीवी शुरू हुआ था, तो उसको लेकर के सलमान नाराज हुए, उन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक झगड़े का रिलेशन था, और भी कई झगड़े हुए थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मुझे एक दिन कहा कि दबंग सलमान की पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है और उनकी बेटी सोनाक्षी उसमें हीरोइन थी, तो उन्होंने कहा कि अगर इस समय सलमान को आपकी अदालत में आप लाएंगे तो अच्छा होगा और सोनाक्षी के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि उनसे तुम्हारी लड़ाई है, वो आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लेके आऊँगा। तो वो सलमान को लाए। दिन में 3 बजे उन्हें पहुंचना था। मुझे सब ने कहा था कि वो आएगा ही नहीं, लेकिन वो सही समय पर आ गए। अब जो मेरा ऑफिस है वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे थे, मेरी पत्नी है, मेरे ऋतु जो इसको शो को डायरेक्ट करती हैं वो थी, सोनाक्षी थी। और जब सलमान एंटर किए तो वो ऐसे आए, ऐसे यहाँ हाथ रख के, जैसे आपने देखा वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ डिस्कस करना हो आपको, शो तो कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना है सर? तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हो मैं आपसे ना पूछूं। कुछ भी पूछो सर। तो मुझे लगा बहुत हॉस्टाइल हैं। और फिर मैंने अपनी वाइफ को, मैं दूसरे बगल के कमरे में ले गया। मैंने कहा भाई ऐसे हॉस्टिलिटी से कैसे शो होगा, ये वहाँ पर झगड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तो नहीं शो करना चाहता। तो उन्होंने कहा देखो इतना बड़ा स्टार है, हमारी हॉस्टिलिटी रही है, उसके बाद भी वो उठ के यहाँ आया है, तो ये तो नहीं करो कि शो मत करो। और फिर उन्हें आइडिया दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा को उसमें जज बना दो, क्योंकि वो लेके आए थे और उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, सलमान को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो जब शत्रु जी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा खामोश, हम तैयार हैं। शत्रु जी जज बने, प्रोग्राम शुरू हुआ। सलमान कटघरे में जब बैठने के बजाय वहाँ भी खड़े हो गए। तो मैं कहा बैठिए सर। सर मैं हर कोर्ट में खड़ा रहता हूँ। तो अब वो जब तो वो बैठेंगे नहीं तो शॉट कैसे बनेगा? वो खड़े हुए हैं, कटघरा थोड़ा ऊपर है, मैं इधर खड़ा हूँ, कैसे सवाल पूछेंगे? तो मैंने कहा शत्रुघ्न से, मैं कहा जज साहब आप ज़रा कहिए। तो उन्होंने कहा खामोश मुज़िम, अपनी जगह पर बैठिए। तो सलमान बैठ गए। उसके बाद जब शुरू हुआ शो तो उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि कब उन्होंने
सवालों के अच्छे से जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने उनको उनके ब्लैक बक के केस के बारे में पूछा और पूरी डिटेल में उन्हें बताने दिया। फिर उनका जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूछा, उसके बारे में बताया। और जब वो बता ही रहे थे तो फिर मैंने धीरे से ऐश्वर्या राय के बारे में भी पूछ लिया। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। फिर मैंने कटरीना के बारे में पूछ लिया। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर आप मेरी बड़ी क्लास ले रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे से जवाब, ऐसे जवाब उन्होंने कभी कहीं नहीं दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा सर मुझे, तो मैंने कहा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो उन्होंने कहा सर पूछना क्या है सर मैं आपसे। तो मैंने पूछा क्या। तो वो वहाँ से उठ के कटघरे से उठ के आगे जहाँ मैं खड़ा हुआ था और मुझे कहा ये सर ये बटन खोलिए। तो फिर कहा सर नीचे बैठिए। फिर कहा पुशअप पोजीशन लीजिए। फिर कहा चलिए सर पुशअप हो जाए। तो 1 2 3 4 10 11 12 जब हो गए तो उन्होंने फिर मेरे देखा, कहा तगड़े हो सर आप तो। उनको लगता था मैं 2 3 4 के बाद तो गिर ही जाऊंगा, उनसे क्या करूंगा, उनसे कहाँ मुकाबला कर सकूंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो हुआ। और वो शो जब टेलीकास्ट हुआ उसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे। लोगों ने पहली बार सलमान को इस तरह से बात करते हुए देखा था और वो उस वक्त का सबसे सुपर हिट शो हुआ। तो कभी कभी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं जिनमें से निकल कर के हम आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ सलमान के बारे में। उसके बाद में उनसे मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आप जिसके जितना ज़्यादा करीब जाते हैं आपको उस आदमी के बारे में उसकी कमियां पता चलती हैं। लेकिन सलमान को मैंने जितना करीब से देखा वो मुझे उतने ही बेहतर इंसान लगे। A man with a golden heart. Sir, we have compiled some question from the audience और राकेश सैलू जी को करता हूँ कि वो एक बार सर आपसे करें। सर सुबह मैंने जब आपसे पूछा था मोटिवेशन के बारे में तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि आपका जो मोटिवेशन आज मिलेगा स्टूडेंट्स को दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। बट आपने एक जो उदाहरण दिया कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, वैसे ही बाल्टी में पानी भरने वाला अगर जो ब्रांड रजत शर्मा जी बन सकते हैं तो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक सर। एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं काफ़ी नर्वस हूँ। जैसा आपके शो में आप इतने दिग्गजों को प्रश्न पूछते हैं, आपको प्रश्न पूछना अपने आप में एक बड़ा कठिन कार्यक्रम है। मैंने सुना है सर नरेंद्र मोदी जी का जो इंटरव्यू था दैट वाज आई थिंक द मोस्ट वॉच्ड इंटरव्यू ऑफ इंडिया और वो रात को 2 बजे तक शूट हुआ। तो हाउ यू कुड मैनेज दैट पर्सनैलिटी विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? वो एक राज है। – 2014 में नरेंद्र मोदी जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए, उनको लेकर के लोगों के मन में बहुत उत्सुकता थी, बहुत क्यूरोसिटी थी। कौन हैं, गुजरात से आए हैं, दिल्ली में आएंगे, क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बन के इनके क्या नीतियाँ होंगी, इनका अनुभव क्या है। पूरे देश में एक माहौल था। तो मोदी जी को मैंने आपकी अदालत के लिए इनवाइट किया। वो दिन भर पब्लिक मीटिंग्स करते थे, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला उन्होंने। तो रात को 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, वो करीब 9:30 बजे पहुँचे। और जब वो आए ऑफिस में तो रियलाइज हुआ कि उनका गला बिल्कुल बंद था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उन्होंने कहा कि रजत जी ये तो मैंने बिल्कुल, वो मुझे पंडित जी कहते हैं, पहले पंडित जी मैंने ये फैक्टर ही नहीं किया कि रोज़ रात को गला बंद हो जाता है। और बहुत मुश्किल से ये 2-3 शब्द भी वो हल्के से बोल पा रहे थे। तो ऋतु जी ने उनको कहा कि मैं आपको काली मिर्च का पानी देती हूँ, कुछ काला नमक का ये।
तो उन्होंने कहा रितु जी सारे इलाज रोज़ करता हूँ लेकिन ये गला कमबख्त ऐसा है कि फिर खुलता नहीं है रात में। अब थोड़ी देर इंतज़ार किया, 9:30 10:30 बज गए, बात भी नहीं कर पा रहे थे, चुपचाप बैठे थे और नीचे स्टूडियो में ऑडियंस इंतज़ार कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा आप रात को रुक जाइए, सुबह में हम गला ठीक हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड। आप कहेंगे 5 बजे, मैं तो सुबह 5 बजे भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, पार्किंग मेरे पास सिर्फ अहमदाबाद में है और मुझे वापस अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा और कल पटना में मीटिंग है, परसों पश्चिम बंगाल में जाना है। तो कंटिन्यूसली प्रोग्राम लगे हुए थे। कोई कहा कि फिर बीच में कोशिश करेंगे किसी दिन निकलें। तो ऑलमोस्ट ये तय हो गया कि भाई ये तो नहीं शो होगा। तो फिर मैंने कहा कि नीचे जो ऑडियंस बैठी है उसको एक बार अगर आप अपनी शक्ल दीजिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैंने उनको मोदी जी के नाम से बुला लिया और मोदी जी आए नहीं, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। तो जब माइक लगाने लगे उन्होंने कहा कि माइक क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने कहा आप वहाँ बैठेंगे और मैं लोगों को दिखा दूंगा कि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही, इसलिए ये शो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वही हम चला देंगे। तो उन्होंने उसके लिए भी हाँ कह दिया। अब जैसे ही वो स्टूडियो में पहुंचे 500-600 लोगों की ऑडियंस थी और एकदम स्टूडियो में जैसे भूकंप आ गया हो, लोग मोदी 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 चिल्लाने लगे। पहली बार मैंने वो ये नारा इस तरह से लोगों को चिल्लाते देखा। तो मोदी जी थोड़ा मुस्कुराए, वो बैठे। एक लड़की दूर से खड़ी हुई, उसने कहा मोदी आई लव यू। तो मोदी जी बहुत जोर से हंसे। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। वो काफ़ी इमोशनल हुए। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा देखिए ये लोग यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, असल में ये लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और ये उसमें लिखते हैं कि राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस पर भी मोदी जी हंसे। फिर मैंने कहा एक किसी ने मुझे मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है सोनिया बोली ए सरदार, मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो लेकिन जब वो हंसे बोले, उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना ऑडियंस से कहा कि देखिए भाई ये सब मैं तो नहीं कराता हूँ, ये तो आप कराते हैं। और ये आवाज़ उनका ठीक से निकली। उसके बाद मैंने सवाल पूछने शुरू किए। 1.5 आवर, 1.5 घंटा नॉन स्टॉप उन्होंने हर तरह के अच्छे कड़वे मीठे सवाल का जवाब दिया एंड इट रियली बिकेम द बेस्ट एवर शो ऑफ आपकी अदालत। और मैं आपको बताऊं, जब वो शो ख़त्म हो गया तो मैंने जब वो छोड़ने मैं न्यूज़ को जा रहा था, तब जैसे आपने बताया कि रात के 2 बज चुके थे तब तक के, तो मैंने उनसे पूछा जी ये कैसे आवाज़ आई? तो उन्होंने कहा कि ये दैवी कृपा है, भगवान मेरे साथ है और बस वही मेरी शक्ति है। और ये वाकई में बार बार ये प्रूव होता है कि दैवी कृपा ज़रूर उनके ऊपर है। सर अब जी, देश और दुनिया ये जानना चाह रही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कब बुला रहे हैं? मैंने कोशिश की थी, ऑलमोस्ट एक बार हो भी गया था। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो प्रेसिडेंट हाउस में उनके लिए एक डिनर होस्ट किया था प्रधानमंत्री ने। तो नॉर्मली उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको बुलाया जाता है और हम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और आके प्रधानमंत्री जी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये हैं, ये फला हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये मीडिया में हैं, ऐसे। तो जब ट्रंप साहब मेरे पास आए तो मुझे भी मालूम था कि ये कौन सा याद रखेंगे और मैं कौन सा इस मोमेंट को ध्यान रखूंगा। तो उन्होंने हाथ मिलाया तो मोदी जी ने कहा कि ही इज़ आवर बिगेस्ट टीवी स्टार। तो ट्रंप साहब आगे चले गए, फिर वापस आए एंड ही सेड टीवी स्टार, व्हाट मेक्स यू ए टीवी स्टार? तो मैंने कहा आई डू अ शो। व्हाट शो? अब पूरी दुनिया वहाँ देख रही थी कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं।
क्योंकि वहाँ कोई माइक्रोफोन थे नहीं, आवाज़ किसी को पता नहीं, सिर्फ मैं ही सुन रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आई डू अ शो विच इज़ कॉल्ड अ कोर्ट रूम ड्रामा वेयर आई इन्वाइट political people and ask them for accountability. There is an invited audience. So फिर वो मोदी जी की तरफ मुड़े, उन्होंने कहा कि have you invited this man? I said yes, I have invited him twice. How was he? I said he was the best. So he said no, I am the best. तो I said then you should come for the show. और फिर वो आगे चले गए, फिर वापस आए. Where do you do your show? I said I do it here in Delhi, but if you want I can do it in Washington also. तो ये कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जो नॉर्मली मैं नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे से पूछा गया कि उनको कब बुलाएंगे। फिर जब इस बार जब चुनाव हो रहा था 2024 में, तो फिर मैंने उनको फिर से अप्रोच किया और ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो गया था कि हम कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि वो अपने कैंपेन के दौरान अमेरिका के जिस भी शहर में होंगे हम उस शहर में आ जाएंगे, हम सेट लगा लेंगे, हमें 1 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य होता है, जब ये बात ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी तभी उन पर वो अटैक हुआ जहां उनके कान पर गोली लगी। उसके बाद फिर सारे के सारे जो उनके पब्लिक इंटरेक्शन से इस तरह के वो बड़े मुश्किल हो गए, कई सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए और इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों की दुआ रही तो एक दिन ज़रूर उनके साथ में आपकी अदालत करूँगा। एक पेपर लीक करना चाहूँगा। आज आई थिंक ओवैसी साहब के साथ आपका इंटरव्यू रिले होने वाला है, तो कुछ खास बातें जो आप पहले जाहिर करना चाहें, जो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी एक पेपर लीक हो सकता है। ओवैसी साहब से 2 चीज़ें मैंने मेनली पूछी। एक तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने डील करा दी, तो उन्होंने कहा कि ये बकवास बात है, ये बार बार कहे जा रहे हैं मैंने करा दिया, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। अरे अगर दम है तो फिर इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर क्यों नहीं रुकवा देते? अगर दम है तो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा के दिखाओ। अगर दम है तो ईरान और इजराइल के तकरार रुकवा के दिखाओ, तब हम मान लेंगे कि आपने डील करा दी। दूसरी बात उन्होंने जनरल मुनीर के बारे में कही। मैंने उनसे पूछा कि वो बार बार ये दावा करते हैं कि वो एक इस्लाम के वजह से इस फौज को बनाया है और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा की बुनियाद पर बना है। तो उन्होंने कहा कि कलमा की बुनियाद पे मदीना बना था 1300 साल पहले, और इस्लाम में कोई भी मुसलमान ये कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि कोई 1300 साल पहले मदीना जो कलमे की बुनियाद पर बना था उससे पाकिस्तान को कंपेयर करे। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ये फेल्ड स्टेट है और हमेशा फेल ही रहेगा। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने इस शो के दौरान कही हैं, आप आज शाम को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे असदुद्दीन ओवैसी की लगी, वो जो डेलीगेशन लेकर जिन मुस्लिम कंट्रीज़ में गए थे, उन्होंने भारत का पक्ष वहाँ रखा, वहाँ लोगों को बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान की फ़ौज टेररिस्ट को किस तरह से प्रोटेक्शन देती है, किस तरह से आतंकवादी पाकिस्तानी फ़ौज के प्रोटेक्शन में रहते हैं, और जब हिंदुस्तान ने उनके आतंकवादी अड्डे तबाह किए, वो लोग जब मर गए उनके जनाजे में भी पाकिस्तान की फ़ौज के लोग मौजूद थे, ये सबूत है। और उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, कुवैत ऐसे मुल्कों को कन्विंस किया कि पाकिस्तान की असलियत क्या है और भारत की असलियत क्या है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है हम सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए इस चीज़ के लिए। सर, आप शाम दंड और भेद तीनों के माहिर हैं। उसका एक उदाहरण मैं जस्ट ऑडियंस के सामने कहना चाहूँगा। आपने सलमान खान के साथ पुशअप्स कर लिए, आपने दलेर मेहंदी को कन्फेशन करवा दिया और आमिर को लुरा दिया। तो ये सर आपका स्पेशलिटी अगर जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकें कि हाउ दे कैन कल्टिवेट दिस। एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हो जाता है। कभी कभी
संयोग से ऐसा हो जाता है, कभी कभी मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं। और बेसिकली अगर किसी इंटरव्यू करने वाले की, सवाल पूछने वाले की नीयत साफ है, इरादा नेक है और कोई ये पर्पस नहीं है कि मुझे इस इंटरव्यू से कोई हेडलाइन क्रिएट करनी है, ईमानदारी से वो सवाल पूछने हैं जो पब्लिक के मन में है, तो फिर ये अपने आप हो जाता है। सर एक लास्ट इमोशनल क्वेश्चन पूछ लेता हूं सर जी। आप अरुण जी जेटली के काफ़ी करीबी मित्र रहे हैं, आप उनको कितना मिस करते हैं? कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब अरुण जी को मैं याद नहीं करता हूं, किसी न किसी बहाने उनकी याद नहीं आ जाती है। कॉलेज से लेके, पहला दिन मेरा कॉलेज में था, तब से लेके जिस दिन तक वो जीवित रहे हमारी दोस्ती रही। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजरा है। लेकिन क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई आदमी कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा दिल हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको आपकी अदालत का बताना चाहता हूं कि जिस समय देश में नोटबंदी लगी, अरुण जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश में माहौल ऐसा था कि कोई भी पब्लिक के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी अदालत करना है आपके साथ और सिर्फ इस विषय पर करना है। उन्होंने कहा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। वो आए, शो रिकॉर्ड हुआ। नॉर्मली शो रिकॉर्ड होने के बाद में वो रुकते हैं, खाना खाते थे, उसके बाद बात करते थे, चले जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे पंडित जी जल्दी है, मैं निकलता हूँ, चले गए। सर मेरा एक क्वेश्चन जी सर, आप रितु मैडम को कहाँ मिले और कैसे आपका मतलब अभी भी आपके साथ इस एज में भी इतने प्रेम से काम करती है, आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं? वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको अरुण जी की बात बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऋतु जी की बात बताऊँगा कैसे हुआ। ऋतु जी का और अरुण जी का भी बहुत एकदम क्लोज इमोशनल रिश्ता रहा है। तो जब अरुण जी चले गए तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर वेरी अनफेयर टू अरुण टुडे। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर तुमने जो सवाल पूछे बहुत हार्श थे और एक तुम्हारी इतने बरसों की दोस्ती है अरुण से, तो मैंने कहा यार तुम्हारा इतना उनसे पर्सनल रिलेशनशिप है, इसलिए मैं तो प्रोफेशनल की तरह अपना काम किया है, ठीक है कोई बात नहीं। जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो एक और हमारे मित्र हैं जो बहुत बड़ी पोजीशन में हैं सरकार में, उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी ये काम आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने पूछा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने वो शो देखा है, आपने बड़ा अन्याय किया अरुण जी के साथ। फिर एक और हमारे मित्र हैं, वो भी राजनीति में बड़ी पोजीशन में दिल्ली में, उन्होंने भी यही बात कही। तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मुझे लगा वाकई में अगर सब लोग कह रहे हैं वॉज आई अनफेयर टू हिम, डिड आई हर्ट हिम, क्या इसलिए वो खाना खा के नहीं गए? तो संडे की सुबह मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी कुछ बात करनी है आपसे। तो उन्होंने कहा यार मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें जानते हैं इतना कुछ हो रहा है, क्या है कोई ज़रूरी बात है? तो मुझे वाकई में उनकी आवाज़ से लगा शायद नाराज़ होंगे। तो मैंने कहा ज़रूरी बात है, बस 5 मिनट, आ जाओ, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनके ऑफिस में पहुँचा तो वो बहुत सारे सेक्रेटरी सबके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उनके सबके सामने मुझे कहा बताओ क्या बात है? मैंने कहा नहीं मुझे अकेले में बात करनी है। वहाँ से उठ के जो उनका ऑफिस है, फाइनेंस मिनिस्टर का चेम्बर है, उसमें आ गए, बैठे। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों? तो मैंने कहा जी कि मैं सॉरी कहने आया हूँ, आई वॉज अनफेयर टू यू। ही सेड कहाँ? तो मैंने कहा वो आपकी अदालत में। ही सेड कौन कह रहा है? मैंने कहा मुझे 1-2 लोगों ने कहा। किसने कहा? मैंने कहा नहीं मैं नाम नहीं बताऊँ किसने कहा। ही सेड कोई अनफेयर नहीं रहे भाई,
तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। तुमने सवाल पूछे, मैंने जवाब दे दिया। हम क्या नूरा कुश्ती लड़ने के लिए बैठे थे वहां? आई कुड नॉट बिलीव किसी आदमी का इतना बड़ा दिल हो सकता है। और फिर मैंने कहा बस मैं यही समझने आया था। आप कहीं कल के नहीं कुछ बात नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। मैं दरवाजे तक आया, फिर उन्होंने फ़ोन किया 1 मिनट पंडित जी आना। मैं वापस आया तो उन्होंने कहा अरे भाई मैंने भी तो तुम्हें ठोका था उस शो में, तुम क्या बात कर रहे हो? तो उनको ये भी नहीं अच्छा लगा कि कोई ये कह दे कि मैंने हार्ड सवाल पूछे। उन्होंने कहा मैंने भी तो तुम्हें कहा था, ऐसा लग रहा है कि तुम काले धन देने वालों के साथ खड़े हो। मैंने कहा आपने कहा था। मैंने तो तुम्हें कहा था ऐसा लग रहा है तुम गरीबों के खिलाफ खड़े हो गए हो। मैंने कहा आपने कहा था। तो मैंने भी बराबर ठोका था, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो गया, जाओ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि किसी से कितनी भी दोस्ती हो, कितना भी इमोशनली अटैचमेंट हो, लेकिन जो आदमी ईमानदार, कमिटेड, प्रोफेशनल होता है वो अरुण जेटली की तरह होता है। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। इन्होंने ऋतु जी के बारे में पूछा। असल में मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें जो कुछ हुई हैं वो आपकी अदालत से जुड़ी हुई हैं। जब आपकी अदालत का 5th शो था ये, उसमें मैंने कपिल देव को बुलाया था, जो उस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, मेरे दोस्त थे। और उस ज़माने में तो दोस्तों को ही बुला करके बिठाते थे, उनसे सवाल पूछते, और वो बड़ा अच्छा शो हुआ था। तो कपिल ने मुझे कहा कि यार मैं कप्तान हूँ, एक बार ज़रा मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, ये ऑन एयर जाए इससे पहले कहीं कोई ऐसी बात कह दी, ये बोर्ड वगैरह लोग नाराज़ हो जाएं तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो रात को 12 बजे एक स्टूडियो था जो हम हायर करते थे, जहाँ पर हाफ चार्जेस लगते थे, तो वहाँ वो प्रीव्यू करने के लिए आए। जब वो आए तो उनके साथ में एक लड़की थी जो उनके साथ काम करती थी। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरे यहाँ देव एंड देव स्टूडियो है, उसमें ये प्रोड्यूसर हैं, ये टीवी की एक्सपर्ट हैं। अब उन्होंने प्रोग्राम देखा, दोनों ने कहा, और बार बार वो उनसे ओपिनियन ले रहे थे कि कैसा लगा। तो फाइनली ये हुआ कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा शो है। और फिर वो जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें, बोले कि मैं अपना जो प्रोडक्शन हाउस है वो बंद कर रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत हो तो ये बहुत कमिटेड है और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शार्प है, इसको तुम आपकी अदालत की प्रोडक्शन के चाहो तो यूज़ कर सकते हो। वो ऋतु जी थी। और फिर मैं उनको मिला, उनसे बात की, और उनके बाद में जो उस समय आपकी अदालत ZTV पर आता था, तो ये ZTV का न्यूज़ सेक्शन जो हमने सेटअप किया, उसमें वो मेरे बाद पहली एम्प्लॉई थी। और कई साल हमने काम किया। और फिर उसके बाद ये भी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन बताऊंगा कि कैसे अरुण जी ने पहचान लिया कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और उन्होंने सबके सामने कह दिया। तो फिर वो रिश्ता बना। लेकिन मैं 2 बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रिश्ते बनते हैं ये ज़रूर किसी दैवी संयोग से बनते हैं, किस्मत से बनते हैं। ऐसे हमारा अचानक मिलना, साथ काम करना, एक रिश्ता बन जाना, ये सब संयोग था। लेकिन जीवन में जो कुछ मैंने सफलता हासिल की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी अदालत का जो प्रोडक्शन है, आपकी अदालत का जो लुक है, इंडिया टीवी का जो लुक एंड फील है, इंडिया टीवी का जो प्रोडक्शन है, आज की बात का जो लुक है, मेरा जो अपीयरेंस है, मेरे जो कपड़े हैं, मुझे क्या पहनना है, कैसे दिखना है, कैसी टाई पहननी है, कैसे कलर मैचिंग होनी है, जो आज आप देख रहे हैं ये उन्हीं का बनाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में उन्होंने प्ले किया है और आज भी वो प्ले करती हैं। वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, वो मेरी दोस्त हैं, वो मेरे साथी हैं। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो शायद सफलता इस लेवल पर मुझे नहीं मिल पाती। सर एक सवाल है सर, आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जिक्र किया सर। हमारे काउंसिल में भी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो श्रीराम कॉलेज से ही हैं, काउंसिल मेंबर हैं।
सर मुझे सौभाग्य मिला पीसी जैन साहब जो प्रिंसिपल रह चुके हैं 34 साल तक एसआरसीसी के, वो हमारे काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर थे सर, तो हमने उनके साथ बहुत मिल के काम किया। तो सर जब आप एसआरसीसी में थे और जैन साहब हमें कहते हैं कि एक समय था कि 10 में से 9 लोग सीए करते थे श्री राम कॉलेज में, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये आया कि मैं ये कोर्स करूं, या आपने मन बनाया या नहीं बनाया? और दूसरा उसी से जुड़ा सवाल सर, क्योंकि सब यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारा काम अक्सर क्लाइंटों से सवाल पूछना होता है, तो सर आप किसे एक स्किल अगर आप हमें प्रैक्टिकल लाइफ में दे सके जो सबको शायद काम आएगी। आप जब सवाल पूछते हैं सर, रेयरली किसी को बुरा लगता है, तो ये क्या है जो आपने आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप किया कि आप किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं पर उसको ऑफेंड नहीं करते हैं? थैंक यू। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तो मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो सपने बहुत छोटे छोटे थे। सिर्फ इतना सोचता था बीकॉम कर लूँगा, उसके बाद में किसी बैंक में नौकरी करूँगा। उस ज़माने में बैंक में ओवर टाइम मिलता था, और इतने पैसे कमा पाऊँगा कि अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन में संयोग हुए हैं। कॉलेज में एडमिशन लिया, पहले ही दिन मेरी अरुण जी से मुलाकात हुई, और फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया, और उसके बाद रास्ता ही बदल गया। तो फिर कभी ये नहीं सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और काफ़ी सालों तक जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त थे उनकी ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि सीए की ज़रूरत उसको होती है जिसके पास पैसे होते हैं। अब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं, उनकी मदद भी लेनी पड़ती है। तो ये बदलाव है। दूसरा आपने क्या पूछा था? हाँ, दूसरा आपने पूछा कि ऐसे, देखिए मुझे लगता है कि सवाल पूछने में जब भी क्यों नहीं लोग नाराज़ होते हैं, क्यों नहीं लोग बुरा मानते हैं, 2 कारण हैं। एक, जब मैं कोई शो करता हूं तो मेरे दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता कि मुझे इस आदमी को ऐसे घेर के इससे हेडलाइन निकालनी है। दूसरा, मैं कभी नहीं चाहता कि किसी को मैं कहूं कि आप आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं और फिर मैं मेहमान की इंसल्ट करूं, अपमान करूं। ये मैं कभी नहीं करता हूं। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। और तीसरी बात है कि जो सवाल पूछता हूं वो सवाल नहीं पूछता जो मैं पूछना चाहता हूं। मैं वो सवाल पूछता हूं जो मुझे लगता है कि आप लोग, देश की जनता, उनके मन में जो सवाल होते हैं वो पूछने की कोशिश करता हूं। इसलिए कड़े से कड़े सवाल भी अगर आप आदर से मुस्कुरा करके पूछ लेंगे किसी से, तो मुझे लगता है वो बुरा नहीं मानेंगे। इसीलिए जब हमने आपकी अदालत के 21 ईयर्स सेलिब्रेट किए तो जितने लोग तब तक आपकी अदालत में आए थे सबको हमने एक मंच पर बुलाए, एक साथ आए, और सब लोग आए, किसी ने इनकार नहीं किया। क्योंकि कोई, अब 32 साल हो गए, मुझे एक को छोड़ के बाकी कोई नहीं मिला जो कभी जो नाराज़ हुआ, जिसको इस बात से नाराज़गी हो कि आपने बुला के मेरे से हार्ड सवाल पूछे। सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, वो नाम मैं फिर कभी किसी दिन बताऊंगा। सर, Respected sir, it is indeed a privilege to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed chief guest, Sri Rajat Sharma ji, for gracing the student conference with his presence. Sir, your inspiring words, life journey and wisdom have not only enlightened us, but have also deeply motivated the youth. Let's have one few more questions by sir. Please have a big round of मजा आ रहा है applause. आपसे बात करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि आप टाइम हो गया तो फ्लाइट थोड़ा डिले कर लेंगे। क्या हुआ? क्या बात है सर, 10 मिनट और 5:30 तक। थैंक यू सर। बेटा Sir, this is my question.
सर मैं आपका और मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे गेस्ट के साथ इंटरव्यू किए हैं, बट मेरा एक क्वेश्चन है सर, बाला साहेब ठाकरे द लेजेंड ऑफ महाराष्ट्र, सर उनको इंटरव्यू करके टाइम आपको कैसा फील हुआ था सर? उस समय आपकी अदालत करते हुए करीब 3 साल हुए थे। मुंबई में बाला साहब ठाकरे के साथ इंटरव्यू किया। बाला साहब ठाकरे का बड़ा खौफ था, डर था, किसी ने कभी उनको इंटरव्यू नहीं किया था, किसी ने कभी उनसे सवाल नहीं पूछे थे। लेकिन और मैं भी बहुत तैयारी करके गया था, लेकिन मैं आपको आज कह सकता हूं कि उनके जैसा मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। मैंने पहला सवाल बड़ी तैयारी के साथ पूछा था। मैंने कहा कि बाला साहब सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है। तो मैंने कहा वो कहेंगे कि नहीं कांपती, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो मैंने कहा बाला साहब सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है। तो उन्होंने कहा कांपना ही चाहिए, मुझे नहीं कांपेगी, क्या आपको कांपेगी? तो उनके जवाब इस तरह के थे। मैंने उनसे कहा कि बाला साहब लोग कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद गिरी उसमें आपका हाथ था। बोले नहीं, हाथ नहीं, पांव था। तो जो आदमी इस तरह के जवाब दे रहा हो वो फिर प्रोग्राम करने में भी मजा आता है। उस समय जो बिहाइंड द सीन सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि जब हम ब्रेक के रुके तो फ्रंट रो में जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम जुग जुग जियो, तो लेकिन इनसे अब ज़्यादा ऐसे सवाल मत पूछो वरना ये शिव सैनिक तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा आप माँ जी चिंता मत करिए। जब मैंने फिर ओपन किया तो मैंने कहा बाला साहब कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने आपसे ज़्यादा सवाल पूछे तो फिर मैं ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अरे बहुत दिन बाद एक टाइगर को टाइगर मिला है, मेरा अभय दान है, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी पूछो। और बाला साहब ठाकरे के साथ जो शो किया, जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ, मुझे लोगों ने बताया कि मुंबई की सड़कों पर सड़कें खाली थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना था इसका रियलाइजेशन मुझे हुआ जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया। लाहौर में मुझे सब लोगों ने पूछा अरे आपने बाला साहब ठाकरे को ऐसे मुश्किल सवाल कैसे पूछ लिए। पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई आदमी था जिसने बाला साहब ठाकरे का वो शो ना देखा हो। तो इतनी बड़ी ताकत थी उनकी। Sir, one last question from my side. I'm Namrata, and with so much busy schedule of yours, how do you manage your work-life balance? बैलेंस है ही नहीं, सिर्फ वर्क ही वर्क है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा है 24 आवर्स है और हमारे हाथ में नहीं है न्यूज़ इवेंट कब होंगे, इजराइल कब बम मार देगा, ईरान कब जवाब दे देगा, मोदी जी कब नोटबंदी डिक्लेयर कर देंगे, किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो हमारी लाइफ इन न्यूज़ इवेंट से गाइड होती है। कभी भी कोई चीज़ रात को 2 बजे भी हो सकती है, कोई सुबह 6 बजे भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से गाइड होती है। इसलिए जो आदमी इस प्रोफेशन में है और ईमानदारी से है उसके लिए न कोई छुट्टी है न कोई बैलेंस है। और मेरा ये फॉर्चून है कि चूँकि मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती हैं तो 24 घंटे हम लोग काम ही करते हैं, घर में भी बाहर भी। तो फिर इस तरह की कोई तकरार भी नहीं होती कि तुम घर देर से क्यों आए, वो भी देर से आती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। मैं एक बात आपसे चलते चलते कहना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जीवन में बहुत सफल हों, बहुत बड़े बने, और जब आप सफल हो जाएं, जब आप बड़े बन जाएं, जब आपके पास ताकत आ जाए, पैसे की ताकत हो, तो एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, आप किसी एक ऐसे बच्चे का जिसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे ना हो, जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी ना हो, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, जिसके पास किताबें खरीदने के लिए क्षमता ना हो, ऐसे किसी एक बच्चे की आप मदद कर दीजिएगा। मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना सफल हो गया। थैंक यू।